Hello, hello, good morning, all of you. You are welcome again. You are welcome again. Online classes. As you already know, the first lesson has been over. As I told you yesterday, uh, to give you exercises which are given at the end of the lesson to be done. Exercise one by one. Now you try to understand what does it want to be done by you. Circle the direct objects and underline the indirect objects, if any, in the following sentences. इसमें क्या है, जैसे जैसे आई बॉट ए कंप्यूटर गेम फॉर माई ब्रदर, इस सेंटेंस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे सर्किल लगाना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है फ्रॉम फर्स्ट टू 8। इन सब में आपको ऐसा ही करना है, जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है वहाँ सर्किल लगाना है और जो इनडायरेक्ट है वहाँ अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका आई बॉट ए कंप्यूटर गेम फॉर माई ब्रदर, तो ए कंप्यूटर इट इज नॉन लिविंग, इट मीन्स इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर माई ब्रदर ये इनडायरेक्ट है क्योंकि लिविंग है। इन द सेम मैनर यू आर टू अटेम्प्ट all the ticked, marked 1, 2, 4, 7 or 8. All these 5 you are to attempt in your answer book. Okay. Now let's move further to another exercise. That is exercise 1 by 2. Exercise 1 by 2. In this exercise, you are to attempt identify given sentences as assertive. So there are many kinds of sentences. As you are told, sentences are assertive, imperative, exclamative, interrogative. Now you are to find out the types of sentences from these exercise. How beautiful is the flower? Okay. Virat Kohli is a great cricketer. Simple sentence, Virat Kohli is a great cricketer. Simple sentence because this sentence starts with Virat Kohli and then verb and so on and so on and so on. Third देखें आप, question number 3. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Okay, this one is number 4. I cannot believe that he is a dancer. Number 8. What a beautiful view of the hills. So all the marked, ये जो marked के sentences हैं, इनको अपनी कॉपी में आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, इनको फाइंड आउट करना है एंड इनको आपको लिखना है कि ये विच टाइप ऑफ सेंटेंस आर देयर। नंबर 1, हाउ ब्यूटीफुल, एक्सक्लेमेटरी। इन फ्रंट ऑफ देम you are to write. Exercise number B. Exercise B of 1 by 2. Rearrange. In this you are to do rearrange the following words and phrases to form meaningful sentences as directed. These sentences are written in a jumbled way. You are to rearrange according to the structure of the sentences. Young, worried, the woman, how, looks. So in the bracket, what type of sentence is given?
You have to rearrange this sentence accordingly. So exclamatory like this. So how, like this, how worried the woman. तो ये जो सेंटेंस है आपका, इस तरह से इसको आपको बनाना है. सेकंड है हाउ मेनी आर देयर डू यू नो इन योर लाइव्स. इनको सेट करना है, रीअरेंज करना है. तो ऑल द मार्क्ड, ये जो मार्क्ड वाले हैं 1 2 7 8 और 9, 1 2 3, ये जो 5 हैं आपके, इन 5 को करना है. सबको नहीं करना है, ओनली जो मार्क्ड हैं आपके, जिन पर टिक लगा हुआ है, उनको आपको अपनी कॉपी में अटेम्प्ट कर लेना है. और इसकी फोटोकॉपी आपको भेजी जा रही है, किसके थ्रू? व्हाट्सएप के थ्रू. ओके, तो ये अपनी कॉपी में इन चीज़ों को आप अटेम्प्ट कर लें. तो ये फर्स्ट चैप्टर जो था, ये सेंटेंसेस पर डिपेंड था. इनमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े, इनको रीअरेंज करने के लिए ये सब, इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी दिया जाएगा इनको. ये जो आपका बी वाला है, इसमें जो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इनको रीअरेंज करने के लिए आपके लिए एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है. ये बुक में नहीं है, हो सकता है 7th क्लास की बुक में भी लिखा हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पेन से लिखा है और मैं इसको व्हाट्सअप कर दूंगा आपको, है ना. इसके थ्रू आप इस स्ट्रक्चर को भी आप उतार लेना, और इसकी हेल्प से आप इन्हें सॉल्व कर लेना. अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है फ्रेजेस. वही आपका फ्रेजेस. फ्रेजेस क्या है? व्हाट इज फ्रेज? वी हैव डिस्कस्ड in the previous classes that a phrase is a group of words. phrase जो है वो शब्दों का समूह होता है. a phrase does not contain a finite verb. phrase में एक चीज़ जो नहीं होती वो है finite verb. मतलब phrase में आपको verb नहीं मिलेगा, without verb होता है. it is a part of a sentence. phrase जो होता है कि sentence का part होता है, हिस्सा होता है. इसमें हम कुछ और फ्रेज के बारे में जानेंगे. यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये फ्रेज. तो ए फ्रेज इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेकंड, इसका जो डिफरेंस है, तो इट फ्रॉम क्लोज जो डिफरेंस है वो, इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. इसका जो सेंस होता है, इसका जो मीनिंग होता है, वो कंप्लीट नहीं होता. इट हैज़ नो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट. फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है ना प्रीडिकेट होता है. ओके, इट हैज़ नो फिनिट वर्ब, और ना इसमें कोई फिनिट वर्ब होता है. तो फ्रेज क्या हुआ? फ्रेज वो होता है, तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अगर हम इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट हैविंग कंप्लीट मीनिंग इन इटसेल्फ. फ्रेज वो होता है जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, नंबर 1 थिंग. दूसरी चीज़, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें प्रीडिकेट नहीं होता. नंबर 3 है, इसमें कोई फिनिट वर्ब नहीं होता फ्रेज में. तो दिस वन इज फ्रेज. तो इसको हम फ्रेज कहते हैं. एग्जाम्पल्स, यू माइट सी एग्जाम्पल्स हियर, यू माइट सी. तो ही इज ए ब्रेव बॉय. तो ही इज ए ब्रेव बॉय, सॉरी, ये दिस वन काइंड्स ऑफ फ्रेजेस है ना. तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. 3 तरह के फ्रेजेस हैं. नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस. अब नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं? व्हाट आर नाउन फ्रेजेस? ए नाउन फ्रेज डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस. एक सेंटेंस में
नाउन फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस में उसका फंक्शन होता है नाउन की तरह। जिस तरह नाउन का फंक्शन एक सेंटेंस में एज ए नाउन होता है, उसी तरह से नाउन फ्रेज का फंक्शन भी सेंटेंस में एक नाउन की तरह ही होता है। इन ए सेंटेंस ए नाउन, सेंटेंस में नाउन का ए नाउन एक्ट्स इज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो नाउन फ्रेज है वो या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा जहाँ सब्जेक्ट लिखा जाता है, या उसको लिखा जाएगा या उसको पोजीशन दी जाएगी इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो इसके स्थान हैं सेंटेंस में यूज करने के लिए। इन द सेम वे ए नाउन फ्रेज ऑल्सो वर्क्स एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। और इसी तरह से एक नाउन फ्रेज जो होता है उसका फंक्शन बिल्कुल सेंटेंस में ऐसा ही होता है जिस तरह से एक सेंटेंस में एक नाउन का होता है। A noun phrase also works as the subject or the object of the verb in a sentence. For example, the boy in the blue shirt. ये जो रेड से लिखा हुआ है, the boy in the blue shirt is my brother. So from here, the boy in the blue shirt, this one is ये नाउन फ्रेज है, वो नाउन फ्रेज है और इसका यूज एज ए सब्जेक्ट हो रहा है। इज माई ब्रदर, इज वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट द बॉय इज द बॉय इन ब्लू शर्ट, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब के बिफोर आता है, वर्ब के बिफोर सब्जेक्ट आता है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है और किस फॉर्म में है, नाउन फ्रेज कहलाएगा। यहाँ इसका फंक्शन जो है एज ए सब्जेक्ट है और फ्रेज के रूप में। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 का ग्रुप है और नाउन फ्रेज है ये, और इसका फंक्शन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है। सेकंड देख रहे हैं आप, शी लाइक्स टू सिंग। अब यहाँ दो वर्ड्स हैं, टू प्लस सिंग, तो टू और सिंग ये भी नाउन फ्रेज है और इसकी पोजीशन यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि आपको बताया कि नाउन फ्रेज सेंटेंस में काम करता है, इसका फंक्शन होता है एज ए सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। तो टू सिंग ये ऑब्जेक्ट है और नाउन फ्रेज है। ओके, अब नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव मीन्स, you already know about adjectives. The adjective and adjective phrase does the work of an adjective in a sentence. In a sentence, an adjective modifies the noun or pronoun. ये बात आपको पहले से पता है कि एडजेक्टिव एक विशेषण जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और एडजेक्टिव फ्रेज का फंक्शन भी वही होता है जो एक सिंपल एडजेक्टिव का होता है किसी सेंटेंस में। इन द सेम मैनर एन एडजेक्टिव फ्रेज ऑल्सो मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, उदाहरण देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस के। शी हैज बॉट ए रिंग। शी हैज बॉट ए रिंग, उसने एक अंगूठी खरीदी, मेड ऑफ गोल्ड। अब मेड ऑफ गोल्ड सोने की बनी, तो मेड ऑफ गोल्ड तीन वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का ये ग्रुप है और ये ग्रुप जो है ये एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्यों? ये तीनों वर्ड्स किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, रिंग को, अंगूठी को, मतलब नाउन को। तो मेड ऑफ गोल्ड सोने की बनी क्या, रिंग, तो ये फ्रेज हो गया, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो मेड ऑफ गोल्ड इट मॉडिफाइज नाउन रिंग। तो in second sentence, he is a student of extraordinary
टैलेंट, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, बहुत ही समझदार, बहुत ही, तो ही इज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, ये जो ग्रुप है ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, ये मॉडिफाई कर रहा है, ये इस्तेमाल किया जा रहा है स्टूडेंट के लिए, इसके लिए आ रहा है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज। ये एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज आ गया। एन एडवर्ब फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। इसका फंक्शन भी एक सेंटेंस में एडवर्ब जैसा होता है, एडवर्ब फ्रेज का भी जैसे एडवर्ब होते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब जो है वो किस किस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आप देखें, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, एडवर्ब का इस्तेमाल होता है वर्ब के लिए। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो आप जानते हैं ऑलरेडी। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है एडवर्ब को, एडवर्ब और अनदर एडवर्ब, और सेंटेंस में एडवर्ब एडवर्ब के लिए ही इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, लाया जाता है मतलब सेंटेंस के अंदर। तो क्या मतलब हुआ, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या हुई, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो ये इसकी डेफिनेशन को आपको माइंड में रखना है। एडवर्ब, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, ये तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। नंबर वन वर्ब, पहली क्रिया है, दूसरा एडजेक्टिव, दूसरा विशेषण है, और दूसरा क्रिया विशेषण है, मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। इन द सेम वे, इसी तरह से एन एडवर्ब फ्रेज, अब एडवर्ब जो फ्रेज है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें ऑल्सो मॉडिफाइज ए वर्ब, ये भी वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब फ्रेज भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाइज करता है और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। जिस तरह से एक एडवर्ब इन तीनों को मॉडिफाई करता है, उसी तरह से एडवर्ब फ्रेज भी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब इन तीनों के लिए इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। ओके, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखना है कि एडवर्ब के काइंड्स कितने होते हैं। आपकी प्रीवियस बुक में ये दिया हुआ है, 7th की बुक में, कि इनके टाइप्स कितने हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर पहला है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, ये आपके टाइप, ये एडवर्ब के टाइप दिए हुए। इन सब को अपने माइंड में रख के आप इनको सॉल्व करेंगे, आप इन एडवर्ब फ्रेजेस को यूज़ करेंगे सेंटेंस में। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके सामने नीचे दिए जा रहे हैं, इनको आप देखें, इनको ध्यान से देखें। ए सोल्जर लिव्स इन अ बैरक, अब ये ए सोल्जर लिव्स इन अ बैरक, अब ये इन ए बैरक, ये प्लेस है, एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, देखिए ना, ये एडवर्ब फ्रेज है, कौन सा, इन ए बैरक, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो अब देखिए इसमें, ए सोल्जर लिव्स, वेयर डज सोल्जर लिव, आप ये क्वेश्चन करेंगे वो कहाँ रहता है, तो इन ए बैरक, तो स्थान आ गई, जगह का नाम आ गया, मतलब कि वो बैरक में रहता है। तो इन अ बैरक के तीन ये ग्रुप हो गया, और ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस कहलाएगा। तो इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इन अ बैरक, ये मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, किस वर्ब को, इस वर्ब को, लीव्स को। तो लीव्स को मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हुआ या एडवर्ब फ्रेज हुआ। हम आगे देखेंगे, दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, इसमें आप देखें, दूसरे एग्जाम्पल में ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, सेकंड में हम देख रहे हैं ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग क्या है, अब इन द मॉर्निंग इसको मॉडिफाई कर रहा है वॉक को,
वॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हुआ, क्योंकि टाइम दिया हुआ इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। तो नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 में भी वर्ब को मॉडिफाई किया, और इन द मॉर्निंग यहाँ पर भी ये जो है ये वॉक, ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हुआ, एडवर्ब फ्रेज हुआ। और कौन सा हुआ? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, क्योंकि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, टुमारो, टुडे, ये टाइम को शो करते हैं, ये आपको पता है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। रवि ड्रेस द पिक्चर, सॉरी, रवि ड्रीव द पिक्चर, रवि ने पिक्चर बनाई विद ए पेंसिल। कैसे बनाई? हाउ डज रवि ड्रॉ ए पिक्चर, ठीक है, तो विद ए पेंसिल, ये मैनर हो गया, विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल। तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, तो ये मैनर हो गया, मतलब ये हम जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कि हाउ डज वन वर्क, कोई काम कैसे करता है, किस तरह करता है वो। जैसे रवि ने पिक्चर बनाई पेंसिल से, तो यहाँ विद ए पेंसिल, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर होगा। तो विद ए पेंसिल ये ग्रुप हो गया, और ये भी किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये 1 2 3 तीनों जो इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर ये एडवर्ब फ्रेज है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता हुआ दिखाया गया है। तो इस तरह से ये आपके 3 तरह के एडवर्ब आपके सामने आ गए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। 3 के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। लगता है कि आप लोग काफ़ी हद तक इसमें समझ गए होंगे, आपकी बात समझ में आ गई होगी कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये भी आपने समझा इसके अंदर। और फ्रेज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये भी आपके सामने आ चुकी है। और आप प्रीवियस बुक में आप देखें इन चीज़ों को, तो वहाँ भी दिए हुए हैं, उसी का रिपीटेशन है ये, जो आपको 8th क्लास में दिया हुआ है। तो अपनी प्रीवियस बुक में भी देखें और यहाँ भी देखें, क्योंकि प्रीवियस बुक तो आपके पास ऑलरेडी है, ये बुक शायद आपके पास ना हो, इसलिए आप प्रीवियस बुक से कंसल्ट करेंगे तो और इन चीज़ों को समझना और करना आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट। इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम लेते हैं। 2.1 एक्सरसाइजेस, अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस। इसमें कह रहा है कि जो नाउन फ्रेजेस हैं उनको अंडरलाइन करिए, इस 1 से लेके 1 से लेकर 8 तक। ये अब इसमें नंबर 1 पे मैं मार्क लगा रहा हूँ, नंबर 1, इसको सॉल्व कर लें आप। इसमें नंबर 3 को सॉल्व कर लें, 4 कर लें, 7 कर लें, एंड 5 कर लें। तो ये आपके 5 आउट ऑफ 8। आपको 8 के 8 नहीं करना है, आपको 8 में से 5 कर लेना है, जो इस पर मैंने टिक लगाया है। इसकी भी मैं अब फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगा, और इनको भी अपनी कॉपी में अटेम्प्ट कर लें। तो फॉर टुडे इट्स एनफ सफिशिएंट। ओके, थैंक यू।